हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोनाउन। हिंदी में हम कह सकते हैं इसको सर्वनाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। Instead of means in the place of a noun. It is primarily used to avoid the repetition of a noun. It plays the same function as that of a noun. यह noun की तरह ही function करता है. That is why we call it pronoun. यानी जो noun में pro आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है pro player. इसलिए जो नाउन में प्रो मेन प्रोनाउन, सिमिलरली हिंदी सर्व नाम। सर्व मीन सबका नाम, हमारा नाम होता है। जैसे मैं बोलता हूं मैं, तुम, वह। ये जो मैं शब्द है ये मैंने कोई पेटेंट नहीं करा रखा कि आप भी इसको मैं बोल सकते हो। कोई भी एनीबॉडी कैन यूज दिस वर्ड मैं, तुम। जो सभी के लिए एक ही नाम हो उसको बोलते हैं सर्वनाम। सिमिलरली इन इंग्लिश प्रोनाउन, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर? इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ ए नाउन एंड इट प्लेज द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, Ram is my best friend. Here Ram is a noun, proper noun. He reads in 6th class. His father is a doctor. His mother is a teacher. Here, to avoid the repetition of the word Ram, noun, we can use in the place of Ram he, his. So once we may define the word pronoun that is used in the place of a noun. जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम pronoun कहते हैं। Clear? Now we shall discuss about kinds of noun. There are mainly 7 kinds of a noun. मुख्यतः 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो 9-10 पार्ट भी होते हैं, किसी ग्रामर में 11 पार्ट भी हैं। मेनली देयर आर 7 काइंड्स। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ, इम्फेटिक प्रोनाउन। फिफ्थ, relative pronoun. 6th, demonstrative pronoun. And 7th, interrogative pronoun. Personal pronoun in Hindi we can say व्यक्ति वाचक सर्वनाम, यानी जो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, यानी इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑल द 3 persons. All the 3 person means first person, second person and the third person. First person, the speaker of any statement, जो किसी बात को कहने वाला है वो first person. And the second person, the person whom we are speaking is called second person. And the third person means about which we are speaking, means something is being said, is called third person. यानी जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आर डिवाइडेड इनटू 3 categories: subjective case, possessive case and objective case. For example, I, my, me. We, our, ours, us. Similarly, you, your, you, we,
our, us, they, their, them, it, its, it. These are subjective case, and my and mine are the possessive case. Here, my is possessive adjective and mine is possessive pronoun. For example, this is my pen, whereas this pen is mine. Here, my is used as possessive adjective, whereas mine is used as possessive pronoun. This topic will be discussed in possessive pronoun. And objective case, me, us, you, him, her, it, them. सेकंड पोजेसिव प्रोनाउन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इट डिनोट्स ओनरशिप, पोजेशन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जो हमें स्वामित्व के बारे में, पोजेशन के बारे में, किसी संबंध के बारे में या एंटाइटलमेंट के बारे में बताए, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, माइन, ours, your, his, hers, theirs, and its. Your is possessive adjective. Ours is possessive pronoun. Yours possessive pronoun. Your possessive adjective. Her possessive adjective, hers possessive pronoun। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था पर्सनल प्रोनाउन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय मोबाइल, माय मोबाइल। व्हेन एनी नाउन इज यूज्ड immediate after possessive case, then it is called possessive adjective. Second, this mobile is mine. When possessive case is not used immediate after noun, before noun, that is called possessive pronoun. Here mine is possessive pronoun, यहाँ पे mine possessive pronoun है, और whereas mine is possessive adjective. Next, reflexive pronoun, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। This pronoun is used when the subject performs action on itself. जब खुद के लिए कोई एक्शन किया जाए, निजवाचक, जब खुद के लिए, निज के लिए कोई एक्शन किया जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, एटसेट्रा। द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो फॉर्मेशन है वो कैसी होती है? जब हम सेल्फ और सेल्फ को ऐड करते हैं, जब हम सेल्फ और सेल्फ को ऐड करते हैं, सेल्फ और सेल्फ। अगर सिंगुलर केस है तो हम सेल्फ ऐड कर देते हैं, अगर प्लूरल केस है तो हम सेल्फ ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था यूर सेल्फ, इफ यू इज सिंगुलर देन वी यूज सेल्फ, इफ यू इज प्लूरल then we add cells। तो इसकी फॉर्मेशन भी क्लियर है, सेल्फ और सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, राम हैज चीटेड हिमसेल्फ, राम ने खुद को ही ठगा है। हिमसेल्फ, किसको ठगा है? राम को ठगा है।
यहाँ पे हमने लिखा था परफॉर्म्स एक्शन ऑन इटसेल्फ, सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंफेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इन हिंदी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। It is just like reflexive pronoun. Its formation is also just like reflexive pronoun by adding self and selves. Emphatic pronoun, this pronoun has the same form as that of the reflexive pronoun, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। It is used to add emphasis to a given statement. ये जो हमें जो बात दी हुई है उस पर जोर डालने के लिए जो यूज किया जाता है वो इंफेटिक प्रोनाउन है, यानी इंफेसिस डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ रोट द स्टोरी। मैंने कहानी खुद लिखी है, किसी और ने नहीं। ना किसी हेल्प ली है मैंने, ना किसी अपने ब्रदर की हेल्प ली है, ना किसी फ्रेंड की हेल्प ली है, ना मैंने कोई कॉपी की है, खुद अपने आप। आई माई सेल्फ रोट द स्टोरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronoun? The reflexive pronoun is used to add, it is generally used before the verb. It is used before the verb and near to the subject. For example, I myself wrote the story. In the above sentences, Ram has cheated himself. यहाँ पे जो himself है verb के बाद यूज हुआ है, जबकि इसमें myself verb से पहले यूज हुआ है और near the subject के बिल्कुल समीप यूज हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन का डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एनी नाउन। ये किसी नाउन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these and those. This and that are used for singular cases, whereas these and those are used for plural cases. This and these are used for nearness. These and these नजदीकता के लिए, समीपता के लिए प्रयोग किया जाता है, whereas that and those are used for distance, दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। This and that are singular cases, these and those are plural cases. This and these are used for nearness, that and those are used for distance. For example, this is my house. जैसे this indicate the house. Next, interrogative pronoun, प्रश्नवाचक सर्वनाम. It is used to ask questions about the subject or the object or the possessive of a noun. जो किसी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन के पोजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हु, हूज, हु, व्हाट, व्हिच। हियर who are used for person, who is subjective case, whose is possessive case and who is objective case. For example, who has stolen my mobile? मेरा पेन किसने चुराया है? सॉरी, मेरा मोबाइल किसने चुराया है? Who, यहाँ पे जो चुराने वाला है वो सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, whose is पेन दिस, यह है पेन किसका है? यहाँ पे पोजेशन को शो कर रहा है। whose is this pen? whom, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल,
whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? मिलने वाले आप हो, सब्जेक्टिव केस। जिससे मिलना है वो ऑब्जेक्टिव केस है। Whom do you want to meet? What is used for things, idea, which is used for non-living things. Next, relative pronoun. It refers to the nouns mentioned earlier in the sentence. जो सेंटेंस में पहले ही यूज किया जाता है नाउन, उसको रेफर करने के लिए मीन इट इज एन एंटीसीडेंट, यानी जो पहले ही यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, दैट, व्हाट, whom. Who and whom are used for person, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। Which is used for non-living things, whereas that is used for both living as well as non-living things. What is used for idea? For example, they live in the house that Jack built. यहाँ पे house के जो बाद में यूज हुआ है दैट, इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। दे लिव इन द हाउस, वे उस घर में रहते हैं जो जैक ने बनाया। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you guys. Okay, bye.